Join back at 1, sir. All right. All right. This is a 1 hour session? So yeah, it may take 1 hour, it may take 1.5 hours, depending on the queries of the questions the students will ask. All right. All right. Right, sir. Now you will do the admit part. Yeah, so good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Right. The first instruction, morning, sir. see the first instruction. morning, sir. The first instruction which I have given to everybody, anybody has not followed it. What is the first instruction? That nobody will switch on the mic. Everybody will use the chat box to do the chatting part. When I say good morning, everybody will write down the messages in the chat box. Nobody will switch on the mic. Okay? You will use chat box to chat, do everything with me, right? So chatting box को use करें, वहाँ पे messages लिखें, वहाँ पे good morning wish करें. Please do not switch on the mic and do not switch on your cameras also, because that will help us to deliver better. Because when you switch on your camera, it may give us a little bit of bandwidth hiccups, right? So please do not do all these two things. So let us start with the session today. The session is about the emerging education tools by Google. And what is the word which is written in the last is called collaboration. It is very, very important to understand this word collaboration. That is all about this session. So let us move forward and see. We'll have a small quiz now. Again, use the chat window to give your answers. Tell me what this symbol represents. What is this symbol represents? Please write in a chat box only. Okay, great, great. So everybody understood this symbol is for calendar. Great. Now, tell me about this symbol now. The second symbol. Tell me about the second symbol now. Okay, the second symbol is also correct. Okay, do somebody write in the Google Docs. Why are you writing all the symbols? I'm not asking for the third one. The second one is your contacts. What is the third symbol? Google Docs. Okay, great. Fourth one, Google Drive. Okay. Fifth one, the purple. Yeah, Google Forms. This is very famous. I will not ask about this. This one is this is Google Plus, which is similar to your Facebook. Just like Facebook we use, this is Google Plus is again the same platform where we can have those kind of, you can say, walls and everything. We can post our data there, right? We can make circles. We can make friends there. Okay. Then this one. Okay. This one. This symbol, Hangout. Okay. This one. Sheets. This one. I want this. ये बहुत कम को पता होगा. Excel. Yeah, one. Gurkirat Singh has written a very good. सबसे पहले Gurkirat Singh ने लिखा. This is called Sites. This is used for Google Sites. This is Slides.
right? This is used for slides, जो कि मैं इस वक्त use कर रहा हूँ आपके लिए. When I'm presenting you, this is particular thing which I'm using right now. Okay, the last one. Adhiraj, very good. It is Google Vault. So this is the last one, is the Vault, right? We will now discuss each and everything one by one, and we'll see how to work in that. So I'm using my personal ID for that. So I'll show you the practical of each and everything. So let us start with this. So first is your Gmail, then Google Classroom. We will start with Google Drive also, Google Meet, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Jamboard, Keep, Calendar. Students, I request everybody to switch off your mics. Otherwise, now, next time, if anybody switch on the mic, I will remove him from the session. And please do not let me do that. Otherwise, you will lose everything. So that's Google Contacts. And the last is Google Vault. So let us start with the first part, very important, जो कि आज मैंने मॉर्निंग से ये चीज एक नोट करी कि जो बच्चे हैं उन्होंने अपने ईमेल आईडीज को चेक नहीं करा, और ईमेल आईडी के अंदर देयर इज वन मैसेज व्हिच इज देयर इन योर ईमेल आईडीज जो कि आपने चेक नहीं करा और उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और उसको सीरियसली पढ़ा नहीं. दैट इज द रीजन आई हैव टू गिव परमिशन टू ईच एंड एवरीबॉडी इन द सेशन, कि उनको मैं परमिशन दे रहा हूं ताकि वो ज्वाइन कर सके सेशन, उसको अटेंड कर सकें. सो लेट अस सी दैट व्हाई वी नीड दिस नाउ, व्हाई दिस सेशन इज देयर, बिकॉज सम ऑफ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जब हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं, जब हम आपको एक टास्क देते हैं करने के लिए, so you people face lot of problem there, right? So why this Google tools, why this Google tool we are using here in our school? So let us understand that. The first important point, why we are using Google, all in one place. All in one place means that one ID is required to log in into multiple apps, multiple, you can say, applications. So we'll see that how we are doing that. Easy to use है, बहुत easily हम इसको use कर सकते हैं. Why I'm saying बहुत easily हम इसको use कर सकते हैं? Because I'll just give you an example here. आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, काफी लोग मोबाइल फोन से इसको सेशन को ज्वाइन किए हुआ है, काफियों के पास लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं. So अगर मैं मोबाइल पे काम करता हूं तो वही चीज मेरे को डेस्कटॉप और लैपटॉप पे भी मिलती है. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इजी टू यूज, बिल्ड फॉर कोलैबोरेशन. विल डू द कोलैबोरेशन राइट नाउ, राइट? हम कोलैबोरेशन करके देखेंगे आपके साथ में कि हम किस तरह से ये कोलैबोरेशन जो है वो की जाती है. इसमें मल्टीपल जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही पर्टिकुलर जैम बोर्ड के ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, शीट्स में लिखा जा सकता है. सो विल ट्राई टू डू दैट हियर. Access from anywhere, right? अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, you are traveling somewhere, so still you can use this particular application, right? So we'll use all these things. It saves time and simplify everyday task. टाइम बचता है इससे. देखो, क्योंकि देखो क्या है, फोन हमारे हाथ में है और फोन जो है वो 24/7 हमारे हाथ में रहता है. तो हमें अगर कोई काम, कोई टास्क परफॉर्म करना है तो हम इमीडिएटली अपने फोन को उठा सकते हैं, वहां पे उसको टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? So let's start with the first application. The first most important thing is the Gmail service, right? हम स्कूल की तरफ से जब आपको एक ऑफिशियल आईडी प्रोवाइड करते हैं, राइट, जिसमें कि आपका एडमिशन नंबर है और आप एडमिशन नंबर से लॉग इन करते हैं, तो दिस इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर यू बाय द ऑर्गेनाइजेशन. बट ऑन द अदर हैंड, you can use your personal ID also. Now, as you can see, this is my daughter's personal ID. You can see here on the profile picture, the name of my daughter is written,
right? This is Jasnoor Randhawa's email ID. So we can create an email ID on Google and we can use all these different applications there also. It is not that आपका official ID बनेगा तो ही जो है आप इसको यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को. तो ये देखो, अब सबसे पहले आपका जीमेल जब आपका ओपन हो जाता है, जीमेल में आप लॉग इन कर लेते हैं. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू टेक केयर? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लेफ्ट साइड ऑफ योर दिस जीमेल. If you see the left side, here comes an inbox. I have seen the people जिनके inbox में around 10,000, 12,000 emails पड़ी हुई हैं, and they don't bother even to check those emails. So it is very, very important to check your inbox every day so that you should not skip any of your emails. आप email ना skip करें कोई भी अपनी important, तो अपना inbox check करना बहुत जरूरी है आपको. तो ये इनबॉक्स हमारे पास है, देन स्टार्ट है, स्नूज है, सो सेंड है. मतलब अगर आपने किसी को कोई मेल भेजी है, देखो ये आईडी अभी नया ही क्रिएट किया है हमने, तो इसमें कोई भी सेंड में ईमेल नहीं है. दैट मींस कि नो ईमेल हैज बीन सेंड टू एनीबॉडी फ्रॉम दिस आईडी. सो अगर आपका इनबॉक्स सेंड होगा तो उसमें डेफिनेटली मेल्स आ जाएंगी बहुत सारी, राइट. और इसके नीचे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये देखो. एंड इफ यू कैन सी हियर, मैंने इस सिंबल के बारे में आपसे शुरू में पूछा था. दिस इज कॉल्ड हैंग आउट चैट्स. तो देखो यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर ही है, मतलब आपकी जीमेल के अंदर ही चैटिंग भी प्रोवाइडेड है. गूगल मीट, दिस इज अ न्यू फीचर विच इज देयर इन योर ईमेल आईडी. जीमेल के अंदर ये मीटिंग का भी इन्होंने डाल दिया हुआ है कि आप एक मीटिंग क्रिएट कर सकते हो अपनी. यहाँ पे यू कैन स्टार्ट योर ओन मीटिंग, यू कैन कनेक्ट योर फ्रेंड्स विद योर मीटिंग, राइट, एंड यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद द पर्सनल मीटिंग ओनली. बट इट हैज सम रिस्ट्रिक्शंस आल्सो, इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं साथ में. तो ये था हमारा लेफ्ट साइड. और इसमें सबसे ऊपर वाला क्या है? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड फॉर? To send a mail. To send a mail. Okay, use chat box next time. Sending mails, to create a new mail. हमें नई मेल क्रिएट करनी है, उसके लिए हम कंपोज यूज करते हैं. तो चलो कंपोज पे क्लिक करते हैं. अब आंसर अगेन चैट बॉक्स में देना है आप सबने. टू किसके लिए हम यूज करते हैं? Why we use to here? Yes, to the receivers to whom you want to send your email. This one, CC. CC, what is the full form of CC? Please write down in the chat box. What is the full form of CC? Carbon copy. Great. So why we use carbon copy now? हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, देखो हमारी हैबिट होती है, हमने जितने लोगों को मेल भेजनी है सबको टू में लिख देते हैं हम लोग. बट टू जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है. और अगर आपने ग्रुप ऑफ पीपल को भेजना है तो आप कार्बन कॉपी यूज करें. एंड देयर इज वन मोर थिंग हियर कॉल्ड बीसीसी. चलो बीसीसी के बारे में रेज योर हैंड. हु विल रेज योर हैंड? बीसीसी के बारे में कौन बताएगा मेरे को? नेहा कपूर, प्लीज स्विच ऑन द माइक. Neha, are you there? Ankit Dhawan? Okay, Samara Pannu, please tell me what is blank carbon copy or blind carbon copy? Sir, it is a feature when we can send the email to a large number of people. That is the same which is there in the carbon copy also. So what is the difference between carbon copy and a blind carbon copy? Yes, Simratjeet Kaur. Adhiraj, can you tell me what is the difference between the two? So the two people can see who are the CC people, but the two and the CC cannot see who is the BCC. It is Yes. private BCC. Yes. So if you don't want to tell anybody that to whom you have sent your emails, आप नहीं बताना चाहते कि मैंने ये ईमेल किस किस को भेजी है, तो आप क्या करोगे? BCC यूज करोगे. लेकिन अगर आप बताना चाहते हो, if you want to tell anybody
कि यस ईमेल जो है वो मैंने किस किस को भेजी है, तो आप 20 जो कार्बन कॉपी है उसका इस्तेमाल करें, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीसी एंड अ बीसीसी, राइट? देन इज अ सब्जेक्ट। अब मैंने एक चीज और नोट करी स्टूडेंट्स में, वो क्या करते हैं, अगर वो मेरे को ईमेल लिख रहे हैं ना कि सर मेरा पासवर्ड खराब हो गया या पासवर्ड जो है वो गुम हो गया और पासवर्ड चेंज कर दो, वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट में ही सब कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। दे राइट एवरीथिंग इन सब्जेक्ट, सब कुछ सब्जेक्ट में लिख दिया उन्होंने। मतलब जो मैसेज मेरे को देना था कि माई एडमिशन नंबर इज दिस, आई हैव फॉरगॉट माई पासवर्ड, प्लीज रीसेट माई पासवर्ड, एवरीथिंग इज रिटन इन दी सब्जेक्ट ओनली, बट सब्जेक्ट इज ओनली फॉर दी रेफरेंस पार्ट। लाइक आई वॉन्ट टू सेंड, तो मेरा पासवर्ड भूल गया तो आई विल राइट तो मैं इतना लिखूंगा इसमें, राइट? ओनली इन द सब्जेक्ट आई विल राइट रीसेट माई पासवर्ड। नाउ हियर आई विल राइट डियर सर, माई नेम इज जसनूर कौर, एडमिशन नंबर 18 समथिंग समथिंग, राइट? और यहां पे मैं लिखूंगा कि प्लीज रीसेट माय ईमेल आईडी password, and then what I'll do, I will click on the send button. So please do not do this next time. जब भी मैं next time आपकी email receive करूं, it should be in a proper format, right? And then you can click on the send button, right? And all these applications, I think you know all these things. I just want to discuss something with you, that this one, see, this is a very very new feature. काफी time पहले से ये feature on है इस email में. So can anybody tell me why this feature is added into your email? Anybody who can tell me, raise your hand. Nobody is there? Nobody wants to answer this? कि ये turn confidential mode on and off. Jitanshi, yes, Jitanshi? So it is there to prevent sharing our private messages or examples like bank account information. Yes, very correct, Jitanshi, very correct, great, Jitanshi. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम नहीं यूज करते। जैसे मैंने अपनी लेट्स सपोज बैंक डिटेल्स अपने किसी लॉयर को भेजनी है, एंड आई डोंट वांट कि वो बैंक डिटेल्स बीच में हैक हो जाएं, या कोई मेरी ईमेल का पासवर्ड हैक कर ले, या फिर वो उसको पढ़ ले रास्ते में, क्योंकि डेटा जब ट्रेवल होता है तो उसको कोई भी हैक कर सकता है, ठीक है? सो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो डेटा है वो बीच में हैक हो जाए, तो उस पर्टिकुलर चीज से बचने के लिए दिस कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन. So what happens when this confidential mode is on? See, set expiration means this email will expire in 1 week. Automatically एक हफ्ते के बाद में ये email delete हो जाएगा. आप यहाँ पे 1 day भी set कर सकते हो, 5 years, 3 months, 1 month, 1 week. So by default क्या है? 1 week है. Requires a passcode. आप यहाँ पे passcode भी भेज सकते हो उसको. आप passcode अपने WhatsApp पे शेयर कर दो, SMS के थ्रू शेयर कर दो. सो यू कैन डू दिस. तो इससे क्या होगा कि जो आपका ईमेल है वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा और उसको कोई भी रास्ते में क्या है कैप्चर करके उसको रीड नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज इनक्रिप्टेड विद द पासवर्ड, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर फीचर इज देयर इन दिस. रेस्ट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन बिकॉज वो सारी चीजें आपको आती हैं. सो ये था हमारा left side wala part. Now let's move to the right side. Now if you go to the right side, there is a 9 dots here called Google Apps. और जब हम इस पे क्लिक करते हैं, देखो इसमें वो सारी एप्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करी. न्यूज, मैप्स, चैट, मीट, जीमेल, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव्स, कैलेंडर, फोटोज, डियो, राइट? देन शॉपिंग, क्रोम, ट्रांसलेट, Blogger, Sheets, Docs. See, all the things are there. ये बहुत सारी चीजें आपको यहां नजर आ रही हैं, लेकिन जब आप अपना ऑफिशियल आईडी यूज करते हैं ना, सी हियर,
Just give me a moment. I'm just showing you some more features here. So now if you see that, this is my official ID. Now, if you see here on clicking on the 9 dots, you will find some of the apps are not there. यहाँ पे देखो काफी सारी apps नहीं है जो मेरे पर्सनल आईडी में है लेकिन यहाँ नहीं है. Because this is your official ID, which is owned by someone. This ID is owned by DPS Amritsar. That is why we have restricted some access to some of the apps here. But in the personal ID, if you go, you will find here. I'll just give you one example here. Just see this. Google Earth, Google Ads, ye wale, and then art and culture. These 3 different apps are not there in your official IDs. And even you cannot download this in your official ID. आप इनको ऑफिशियल आईडीज में इंस्टॉल भी नहीं कर सकते और चला भी नहीं सकते. ठीक है, तो जीमेल के बारे में ये 9 डॉट्स हमें क्लियर हो गए किस लिए होते हैं. दिस इज फॉर योर गूगल एप्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हील कॉल्ड सेटिंग्स. मैं क्यों बता रहा हूं ये सेटिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक मैसेज आता है कि सर हमारा पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया है या किसी ने चेंज कर दिया है या अनवांटेड मैसेजेस आ रहे हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सेटिंग्स. सो विल गो टू सी ऑल सेटिंग्स एंड यहाँ पे इफ यू सी दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स. सो गो टू दैट एंड देयर इज द ऑप्शन कॉल्ड चेंज पासवर्ड. यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज पासवर्ड की. सो प्लीज यहाँ पे जाके अपने पासवर्ड्स को चेंज कर लिया करें. अगर आपको पुराना पासवर्ड पता है तो आप नया पासवर्ड लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते अपना. यू कैन चेंज योर पासवर्ड. या वंशिता, दैट्स वेरी ग्रेट. यूट्यूब इज ऑल्सो नॉट देयर विद द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स यूट्यूब भी नहीं चला सकते ऑफिशियल आईडी से, पर्सनल आईडी पे चला सकते हैं हम लोग, राइट. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज पासवर्ड. ओके, लेट्स सी वन मोर थिंग हियर. एक और चीज देखते हैं. देखो मैंने कंपोज पे क्लिक किया. आपने बताना है मेरे को ये कहां से सेटिंग होगी. मैंने कंपोज पे क्लिक किया, नीचे देखो सब कुछ अपने आप लिखा हुआ आ रहा है. बताओ ये कहां से होता है. व्हाट इज दिस थिंग इज कॉल्ड. यस, गुरकरण, वेरी गुड. गुरकरण ने बहुत अच्छा आंसर सबसे पहले आंसर दिया है उसने. इट इज कॉल्ड सिग्नेचर्स. ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे. ये देखो इन द पर्सनल आईडी, अगर हम पर्सनल आईडी में जाते हैं तो उसमें ये नहीं है. Now see here in this personal ID, compose पे क्लिक किया, no signature is here. So how to put on this signature? So मैंने आपको बताया था go to settings और उसमें all settings पे जाना है. Then go to this journal and see here at the last. Journal में last में जाके चेक करो. This is called signature. यहाँ पे आपका ये देखो signature. So click on new and यहाँ पे आप signature लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया. So now that his signature is created here, we can add picture also. We can add animated picture here. So you can create your own signatures here, right? तो इसमें 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे. One is accounts where you can change the password and second is journal where you can have your this signatures, right? So let's move to the next app now. What is it now? See, one more thing very important is that Gmail कब launch हुआ? April 1st 2004 को, 17 years ago. Around 105 languages में ये use किया जाता है. You can type email in Punjabi, Hindi, Gujarati, right? Any language you can use here. Very very important. अब तो सबको आता है ये चलाना, है ना, Google Classroom. आता है कि नहीं आता? ओके, ग्रेट. तो चलो वापस चलते हैं अपने जीमेल अकाउंट में. सो हम ये जीमेल अकाउंट में आ गए हैं. पर्सनल आईडी है, ठीक है. लेट्स सी हियर. सो व्हेन आई क्लिक हियर ऑन द 9 डॉट्स, लेट अस चेक
कि गूगल क्लासरूम यहाँ पे है कि नहीं. यू कैन सी द गूगल क्लासरूम इज हेयर ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि गूगल क्लासरूम सिर्फ आपका ऑफिशियल आईडी में ही होता है. इट इज देयर इन द अनऑफिशियल आईडी, मतलब पर्सनल आईडी में भी है ये. ठीक है. अब जो आपका ये क्लासरूम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में देनी है. तो मेरे को आपके लिए क्लासरूम ऑन करने दो इस वक्त. सो लेट मी स्विच ऑन द क्लासरूम नाउ. So this is my classroom right now. So once you open your classroom, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आप सबको, बच्चों को. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टीचर्स आज के बाद इंप्लीमेंट करने वाले हैं. From today onwards, teachers are going to implement this. So please listen to me very carefully now. Right? मैं आपको प्रैक्टिकली ऑन फोन एंड ऑन लैपटॉप दोनों जगह पे ये चीज करके दिखाऊंगा अभी. ठीक है. जब आप क्लासरूम ओपन करते हैं, दिस इज द बैनर ऑफ योर क्लास. दिस इज द बैनर ऑफ योर क्लास. नाउ इन द बैनर you will find this particular link. आपको ये लिंक मिलेगा बैनर के अंदर. Now why this banner and this link is important now? From now onwards, your teachers will not generate a link for you. आपके टीचर्स आपके लिए लिंक जनरेट नहीं करेंगे. They will not generate a link for you. So do not search for a link. और टीचर को तंग नहीं करना बार बार मैसेज करके, टीचर लिंक नहीं आया, टीचर लिंक नहीं जनरेट किया, टीचर लिंक नहीं शेयर किया. They will not share the link from now onwards. What you are going to do now? In this banner, you will find this link there. Just click on the link. Once you click on the link, you will automatically be joined into your Google Classroom. Meet, जो कि हमारा एक और एप्लीकेशन है, Google Meet. As you can see, I have switched on my another Meet here. So आप Google Meet में अपने आप ही चले जाएंगे उस क्लासरूम की. इसका फायदा क्या है? अच्छा आप लोग एक बात बताओ, कई बार आपको ये चीज फेस करनी पड़ी है कि कोई बाहर का बच्चा आ जाता है आपकी क्लास में और आके वो तंग करता है, क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है. यस और नो? होता है ना ये कई बार. तो ये क्यों होता है? बिकॉज जो लिंक है वो जनरेट किया गया और उसको शेयर किया गया विद द मल्टीपल स्टूडेंट्स. अगर हम लोग इस तरह से क्लास में जाएंगे इस लिंक के साथ, so this problem will not happen. Right? So आपने इस तरह से अब नेक्स्ट टाइम से आपने इस बैनर से इसको ज्वाइन करना है. You will not join it from your. अब फोन पे कैसे करोगे ये? फोन पे कहां मिलेगा अब आपको ये? So can you see this small camera here? ये छोटा सा कैमरा दिख रहा है आपको, देखो ऊपर ये वाला. तो जब आप फोन पे अपना क्लासरूम ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ये देखो, अब जरूरी नहीं है कि स्ट्रीम में ही दिखेगा ये. अच्छा आप लोग जल्दी से मेरे को लिख के बताओ कि आपके क्लासरूम में कितनी टैब्स नजर आती हैं आपको. हाउ मेनी टैब्स यू सी इन योर क्लासरूम? 3. ग्रेट. कौन सी टैब नहीं होती आपके क्लासरूम में? इन 4 में से बताओ कौन सी नहीं होती? ग्रेड. सो ग्रेड्स नाम की जो टैब है वो हमारे पास नहीं होती एज ए स्टूडेंट, क्योंकि वो हमारे पास होती है एज ए टीचर. हम ग्रेड्स देते हैं आपको. तो आपने क्या करना है? अब आप में से कईयों को दिखेगा यार कैमरा तो है ही नहीं मेरा, स्ट्रीम में नहीं नजर आ रहा मेरे को. तो क्या करोगे? गो टू क्लास वर्क. इन द क्लास वर्क ऑल्सो यू विल फाइंड दिस कैमरा देयर. सो क्लास वर्क में भी कैमरा है, स्ट्रीम में भी कैमरा है. तो दोनों जगह पे आपको ये कैमरा मिल जाएगा. यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन ज्वाइन. ये देखो मैंने क्लिक किया, आई कैन ज्वाइन द मीट. सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट. वन मोर थिंग इज देयर. एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना जरा ध्यान से. जैसे ही मैं इसको अपने दूसरे ब्राउजर में चलाता हूं,
See, I'm running it in another browser. अब यहां पे ऊपर चेक करो क्या हुआ. Can you see here something? यहां पे देखो क्या हुआ है ऊपर. क्या है बताओ कि यहां पे क्या लिखा है. कोई anybody who can raise the hand first? Yes, it's a personal ID. Very good. In a chat, it is a personal ID. So you cannot join with the personal ID. So what do you have to do now? You have to switch your account. So अपना switch account पे click करो. Switch account पे click करेंगे और अपने official ID को से login करेंगे और अपनी classroom को join कर जाएंगे without any permission. There is no need for permission. So please remember this small things. कि पर्सनल आईडी से ही परमिशन मांगी जाती है सिर्फ, ऑफिशियल आईडी से परमिशन नहीं मांगेगा कोई परमिशन नहीं होगी. आप सीधा ज्वाइन कर सकते हो उस क्लास के अंदर. सो आई थिंक आपको ये बड़ा क्लियर हो गया होगा कि गूगल क्लासरूम में किस चीज का ध्यान देना है हमने. सेकंड थिंग, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जब हम आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई एक्सरसाइज देते हैं, जैसे ये देखो मैंने बच्चों को एक कोड दिया था लिखने के लिए. सो बच्चों ने क्या किया, कोड यहां पे लिखा ना. एक चीज यहां पे नोट करने वाली है, बता सकते हो यहां पे क्या प्रॉब्लम है इन 3 बच्चों के में से कौन से सही है और कौन 2 गलत है, या कौन 1 गलत है, कौन से 2 गलत है, कौन से तीनों गलत हैं. इस स्क्रीन को देखते हुए बताओ कि इसमें से गड़बड़ क्या है. या जसनीत कौर एंड जसनीत. Sir, in second and third there is no attachment. यस. अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधा टर्न इन पे क्लिक कर देते हैं. अब टर्न इन पे क्लिक करने के बाद वो ये बोलते हैं जी ये तो हमने तो टर्न इन करा था, हमने तो असाइनमेंट सबमिट करी थी, बट देयर इज नो अटैचमेंट. सो यू हैव टू फर्स्ट अटैच योर फाइल्स एंड देन टर्न इन और मार्क एज डन. सो पहले हम अटैच करेंगे फाइल्स को, उसके बाद हम क्लिक करेंगे मार्क एज डन या फिर टर्न्ड इन. See, we will discuss all these questions. गुरसीरत थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे ये वाला पॉइंट भी आपका. सो ये पॉइंट क्लियर हो गया. पहले आपको बताओगी कि आपका जो टर्न इन है, मार्क एज डन है, वो किस तरह से करना है हमने. ठीक है. ओके. वन मोर थिंग, जब भी आपकी असाइनमेंट आपको आती है तो असाइनमेंट पे एक चीज ध्यान देनी है आपने. असाइनमेंट ग्रेडेड तो नहीं है. आपको पता चल जाएगा आपकी जब असाइनमेंट आपको पहुंचेगी ना, जैसे ही टीचर फ्लैश करेगा आपको पता चल जाएगा वो असाइनमेंट ग्रेडेड है कि नहीं है. अगर वो ग्रेडेड है तो सीबीएसई के नए रूल्स के मुताबिक हम आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स जो दे रहे हैं वो फाइनल मार्क्स हैं. उसकी एवरेज निकालेंगे और फिर उस एवरेज को हम यूज करेंगे फॉर फाइनल ग्रेडिंग. सो प्लीज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स सबमिट ऑल योर असाइनमेंट्स एंड गेट योर फुल ग्रेड्स देयर. ओके. So any doubt in this Google Classroom now? Any questions in Google Classroom? No, sir. Any specific question you want to ask, please write in the chat box. Please write in the chat box if you want to ask anything about the Google Classroom. Sure. Now one more thing. Class work में चलते हैं. लोग नॉर्मली यहाँ पे नहीं आते हैं, वो सीधा स्क्रीन पे ध्यान देते हैं ज्यादा. तो जब हम लोग आते हैं क्लासरूम में, on the left side you will find all the topics. वहां पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 topics are there. आपको भी 7 ही नजर आएंगे. आपके क्लासरूम में 7 ही होंगे. ठीक है. वहां पे ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा कोई. तो जब आप किसी भी, जैसे मैंने बुक पे क्लिक किया, सो व्हेन आई क्लिक ऑन माय बुक, सो बुक के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, जो बुक्स मैंने अपलोड करी हैं वो आ गई. When I click on my periodic test, तो जो मैंने periodic test लिया था वो आ गया. When I click on student details, उसकी शेयरिंग आ गई. हॉलीडे होमवर्क आ गया. प्रैक्टिकल्स आ गए. राइट. और जब मैं ऑल टॉपिक्स पे क्लिक करूंगा तो सारे आ जाएंगे. ठीक है. क्लियर विद दिस. नेक्स्ट इज पीपल. पीपल में कौन सा बच्चा नहीं नजर आता? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. कौन सा बच्चा नहीं नजर आता? यस, योरसेल्फ. आप अपने आप को नहीं देख सकते वहां पे, बाकी सारे दिखेंगे आपको.
बिकॉज ऑल ऑफ अदर्स आर योर पियर्स, तो वो दिखेंगे लेकिन आप अपने आप को नहीं देख सकते. गुड, ग्रेट, ठीक है. ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, सर व्हाट we joined today through official ID, it needed permission. Yes, I will discuss that. अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वंशिता उसको, कि why that is required, why permission is there, हमें परमिशन क्यों देनी पड़ रही है आपको, उसके पीछे रीजन है. I'll tell you that reason now. So Google Classroom is clear with you now, right? Google Classroom हमें क्लियर हो गया कि किस तरह से हम देख सकते हैं, कैसे चला सकते हैं उसको, और कहां से ऑन कर सकते थे हम इसको. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आज की डेट में, गूगल ड्राइव. हाउ मच स्पेस गूगल गिव्स यू इन योर पर्सनल आईडी? पर्सनल आईडी में कितनी स्पेस है? यस, एनीबडी वांट्स टू राइट एनी मैसेज? GB, 25 GB. Who is that 25 GB and 4 GB? 5 GB. Adhiraj also says 4 GB. It is 15 GB. 15 GB. Right? 15 GB से कम का स्पेस नहीं मिलता आपको. 15 GB is the minimum space you get in your personal drive. ठीक है, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो गो फॉर परचेजिंग. It is not 25 GB, it is not 4 GB, it is not 10 GB, it is 15 GB. ये देखो, I'll show you that. See here. कितनी है? देखो लिखा हुआ है वहां पे 15 GB. You got 15 GB of your storage, including everything. Everything, मतलब emails, pictures, videos, everything you want to upload. 15 GB से ज्यादा नहीं मिलता. ठीक है, लिखा हुआ है देखो. It is written here 15 GB. Now tell me how much space is here. यहां पे कितनी स्पेस है बताओ जरा. ये मेरा ऑफिशियल आईडी है. यहां बताओ कितनी स्पेस लिखी हुई है. 15. कहां लिखी है 15 यहां पे? Where it is written 15? It is not written anywhere. Now I'll show you that. So I'm going to my Google Drive now and see here storage. How much storage I have used here? कितनी स्टोरेज यूज करी है मैंने? 26.9. 26. और मैंने आपको कितनी बताई थी, कितनी मिलती है हमें? 15. Yes. So why is this is more here? Because this is an organization's space. ये ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस मिलती है, अनलिमिटेड स्पेस होती है ये. इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो. बिकॉज दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एलोकेट की जाती है. ठीक है, सो ये गूगल ड्राइव है हमारे पास. अब गूगल ड्राइव क्यों इंपॉर्टेंट है आज की डेट में? अब हम आपको क्या करते हैं, एक असाइनमेंट देते हैं. राइट, वी गिव यू एन असाइनमेंट, और असाइनमेंट में हम आपको बोलते हैं जी एक डॉक्यूमेंट बना के भेजो हमारे को. जैसे मैंने अभी क्लास 10th को एक ना असाइनमेंट दी थी टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट. तो मैंने सैंपल डॉक्यूमेंट उनको भेजा, उनको बोला कि ये क्रिएट करके वापस मेरे को रिप्लाई करो. अब वो डॉक्यूमेंट कहाँ बनाएंगे? अब लैपटॉप नहीं है उनके पास, ऑन द मूव है, असाइनमेंट भी सबमिट करनी है, ग्रेडिंग भी चाहिए. सो व्हाट दे विल यूज? ड्राइव में गूगल डॉक्स ओपन करके. Yes. तो वो क्या करेंगे, दे विल गो टू द गूगल डॉक्स. राइट, यहाँ पे जाएंगे, वो ड्राइव में जाएंगे अपनी. So they will go to the drive and they will do this. New. And in the new option, you will find folders, file upload, folder upload, Google Docs, sheets, slides, forms,
and some more things are there. राइट, तो यहाँ पे आप गूगल डॉक्स बना सकते हैं. यू कैन क्लिक ऑन गूगल डॉक्स. तो हम थोड़ा इनको मिक्स करेंगे, ठीक है. व्हाई आई एम सेइंग मिक्स करेंगे, बिकॉज गूगल ड्राइव के बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे सामने आती है वो कौन सी है? गूगल मीट. अभी हम गूगल मीट में हैं इस वक्त, हैं? यस, वी आर ऑल इन गूगल मीट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. गूगल मीट इज वेरी वेरी इजी टू यूज है, रिलायबल है, सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है. Right now we are all connected with each other. Tell me how much maximum number of user I can connect in my personal Gmail ID. Personal Meet में कितने बंदों को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ आपस में? Sir, 200. 200, 250 ना, 250 नहीं है. 250 तो अब है, जब आप पैसे खर्चते हो ना, जब आप लाइसेंस लेते हो उसका, देन यू गेट 250. अदरवाइज हाउ मेनी पीपल वी कैन कनेक्ट? 200. ओनली 100. 100 फ्री में 100 यूजर ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है देन यू कैन गो फॉर 250 ऑल्सो. और अगर हम लाइव जाते हैं, मतलब वन वे कम्युनिकेशन, राइट नाउ इट इज टू वे कम्युनिकेशन, राइट. यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन योर माइक एंड यू कैन से, राइट, I can also deliver, you can also say something to me, you can write messages to me. And there is one more way to communicate with the people, that is one way communication. जैसे टीवी चैनल्स करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, वो सिर्फ हमें सुनाते हैं और हम सुनते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं. उसको बोलते हैं गूगल लाइव स्ट्रीमिंग. वो जो लाइव स्ट्रीमिंग हम करते हैं ना, उसमें हम 1 लाख पीपल तक एक गो में जा सकते हैं. वी कैन कनेक्ट टू 1 लाख पीपल इन वन गो, अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो, ठीक है. सो गूगल मीट आ गया हमारे पास में, और ये रहे हमारे गूगल डॉक्स. नाउ आई वांट टू डिस्कस गूगल डॉक्स एंड गूगल ड्राइव इन वन गो. देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट. सो मैंने अभी अभी आपके लिए गूगल डॉक खोला था यहाँ पे एक, तो दिस इज माय गूगल डॉक, और इसमें मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूं. नो, देयर आर लिमिटेशंस देयर. ये फोन, ये जो ऑनलाइन वर्जन होता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, देयर इज अ लिमिटेशन देयर. उसमें एक लिमिटेशन होती है हमारे पास कि कम ऑप्शंस होती हैं उसमें. देयर आर लॉट लेस ऑप्शंस देयर इंस्टेड ऑफ MS वर्ड, जो कि ऑफलाइन वर्जन है हमारे पास, उसमें ऑप्शन ज्यादा होती हैं. तो जब भी आपने, सबसे पहला जो चीज ये है कि जैसे हमने गूगल डॉक खोला, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, यू विल क्लिक हेयर ऑन अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं. वो सीधा गूगल डॉक में लिखते हैं, लिखने के बाद उसको सीधा शेयर कर देते हैं या सेव कर देते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली वो सेव होता रहता है. तो वंस यू रिटन समथिंग इन योर गूगल डॉक्यूमेंट, यहां पे आपको इसको रीनेम करना है. We have to rename this particular thing first. So पहले इसको rename करना है. So tell me, do we have to save it every time? क्या हमें इसको सेव करना चाहिए हर बारी? No, sir. Okay. So we don't need to save this every time, right? You see here. So now tell me from where we will be able to know this कि सेव हो गया. Then here the icon of dog. So from where I can know that my document is saved? Above tools, there is a cloud with a tick. ना, it is automatically saved. कैसे पता चलेगा मेरे को कि सेव हो गया है? There is a file option. ये देखो, see this one. ये छोटा सा क्लाउड बना हुआ है. There is a cloud symbol here. And inside the cloud, there is a tick option.
So concentrate here. I want everybody to see this particular cloud. इस क्लाउड पे ध्यान देना है सबने, ठीक है? Look at the cloud now. इस पे ध्यान देना है सबने. Okay? See. Have you understood now? समझ में आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Yes. हम इस पे ध्यान नहीं देते कई बार, और सडनली हम Yes. अपना ब्राउजर बंद कर देते हैं. तो जब तक ये क्लाउड ऐसे टिक के साथ वापस नहीं आता ना, तब तक समझ लो डेटा सेव नहीं हुआ भाई. तब तक आपको वो लाना है. जब वो आ गया, दैट मीन्स डेटा इज सेव्ड, राइट? नाउ इसमें सारी ऑप्शंस आपको आती हैं. देखो, ये है फॉन्ट चेंज करना, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइट, टेक्स्ट कलर, हाईलाइट कलर. यू कैन ऑल्सो ऐड पिक्चर हेयर. आप पिक्चर लगा सकते हैं. अलाइनमेंट्स आर देयर. सो बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसके अंदर भी. और अगर आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपको ये दिख रहा है, ये देखो, इफ यू सी दिस, अभी आपके सामने ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी. तो अगर आप ऐसे किसी के साथ अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंबल हियर. आप यहां से जब आप क्लिक करेंगे, यू कैन प्रेजेंट इट टू एनीबडी, राइट? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन शेयर. आपको याद है मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक बात बोली थी आपको, कोलैबोरेशन, कि कोलैबोरेट करना है. हमने डेटा को कोलैबोरेट करके बनाना है. हम सब लोग लिखना चाहते हैं उसको. तो मैं यहाँ पे शेयरिंग कर रहा हूं. तो आई एम शेयरिंग इट विद माय सीनियर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम 9th ऑनवर्ड. प्लीज रेज योर हैंड्स जो कि 9th ऑनवर्ड है. ओके, ग्रेट. प्लीज चेक योर ईमेल आईडीज नाउ. आप सब लोग अपनी ईमेल आईडीज को चेक करना जरा, ठीक है? और मैं आपके साथ में एक डॉक्यूमेंट बना के वहां शेयर करूंगा और उसको आपने मॉडिफाई करना है, ठीक है? विल डू दैट कोलैबोरेशन राइट नाउ. सो लेट मी ओपन ड्राइव, बिकॉज ऑफिशियल आईडी से भेजूंगा ना आपको मैं इनविटेशन. तो मेरे को ये ओपन कर लेने दो. Okay, senior students, please check your email IDs now. अपनी email IDs check करना. Senior students, please check your email IDs. अब आपको एक ईमेल आया होगा मेरी तरफ से. Check that email, open that email and start writing your names. Start writing your names. Now students, check the top right corner. Check the top right corner here. You will find all the students who are typing here. Please do not overwrite the names. Do not overwrite the names. Sir, link send कर. Do not overwrite the names. Check your Sir, color. link send कर. I have shared only with the senior students. 9th onwards. Now see how many people Sir, I have. am in 9th only. Yes, check your inbox. Check your inbox. Check your email ID. I will not share this on WhatsApp. So ये देखो सब लोग on है इस वक्त. देखो collaboration हो रही है. This is how the collaboration is done. One document and multiple people can edit. Multiple people can work on that same document. This is how called collaboration. Now to do this collaboration, it is not that कि आप सिर्फ इंडिया में ही होने चाहिए. अगर आप अमेरिका में बैठे हैं तो भी ये चीज हो सकती है. अगर आप रशिया में बैठे हैं, कीनिया में बैठे हैं, so we can do this collaboration from anywhere in the world. Similar way, we can create presentations, we can create Google Sheets,
and we can also go for Jamboards. So Google Sheets, Google Docs, right? और Google Slides, ये तीनों हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, collaboration में डाल सकते हैं. So have you understood the word collaboration and the Google Docs? Okay, great. So let us now, अब इसमें देखो मैंने सबसे collaboration करवा भी ली, अब मैं उसके बाद इसको collaboration हटाना चाहता हूं, so I can do that also. तो मैं यहाँ पे दोबारा से permission दे सकता हूं इन सबको, or I can remove them from this place. Now see, when I saved this, now they will not be able to do anything in this document. किसी ने डॉक्यूमेंट खोल के रखा हुआ है? प्लीज ट्राई टू मॉडिफाई दैट and tell me if you are able to modify it. Your permissions have changed. Yes, that means now you are not able to do any modifications there, right? तो इस तरह से हम कोलैबोरेशन करवा के उसके बाद हम उसका जो एक्सेस है वो वापस ले सकते हैं. Similar way, we can go for Google Sheets and Google Slides. Tell me what is Google Slides then? Google Sheet और Google Slide का दूसरा नाम क्या है? Write in a chat box. PPT. PPT कौन होता है? Sir, presentation. So write down the proper form na, PowerPoint presentation. Do not write PPT. Spreadsheets, great. It is PowerPoint presentation or spreadsheet, or we called it as Excel, right? So we can take up all these sessions separately, right? इनके ऊपर हम separate sessions लेंगे on all these things, right? Now, आपको सबको हमारी तरफ से कई बार फॉर्म्स आते हैं बताओ, हम बोलते हैं आप ये फॉर्म भर के भेजो, है ना? और आप में से कई लोग मेरे को बोलते हैं सर हम तो भर ही नहीं पा रहे वो फॉर्म, हमें तो वो परमिशन मांग रहा है हमारे से वो फॉर्म. आप बताओ आपको किस चीज की परमिशन, कौन सी वजह से परमिशन मांग रहा है वो आपसे? MID. Sir, Because we are using personal ID. Yes, Jasneet, very great. पर्सनल आईडी यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए परमिशन मांगता है वो हमसे. सो जब भी आपको फॉर्म आता है, कोशिश करें कि ब्राउजर में आपका आईडी ऑन नहीं होना चाहिए. ये देखो, आपको सामने मेरा ये ब्राउजर नजर आ रहा है, गूगल क्रोम खुला हुआ. ये टॉप राइट कॉर्नर पे चेक करो, एक मेरी फोटो लगी नजर आ रही है छोटी सी, टॉप राइट कॉर्नर में है. दो है ना, एक तो नीचे जिसमें आगे स्कूल का नाम लिखा हुआ है और एक ऊपर है. वो फोटोग्राफ वहां पे पर्सनल आईडी की नहीं होनी चाहिए, वहां पे ऑफिशियल आईडी होना चाहिए. सो अगर वहां पे ऑफिशियल आईडी है तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वहां पे पर्सनल आईडी है तो परमिशन हमें चाहिए, फिर ही हम उसमें लॉग इन कर सकते हैं. से ज्वाइन करें तो वहां पे आता है ज्वाइन नाउ. सर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा. कभी भी नहीं आएगा जोबनप्रीत. अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ चलाया जाता है, नहीं आता. आपको मैं एक चीज दिखाता हूं. एक जरा चेक करना मेरे इस फोन में कितने आईडीज नजर आ रहे हैं आपको जीमेल के. कैन एनीबॉडी काउंट एंड राइट? फोर 1 2 3 4 5 6 हैं. 4 नहीं है, 6 हैं. जरा 6. आपने नीचे वाले सारे काउंट करे हैं ना, तो ऊपर जो ऊपर सबसे ऊपर है वो भी तो काउंट करना है. तो देयर आर 6 आईडीज, और इन 6 आईडीज को मैं चलाता हूं एक फोन पे. देखो, और मेरे को आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई है परमिशन वाली कि मेरे से वो परमिशन मांग रहा है. क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, वो भी बताता हूं, दिखाता हूं मैं वो भी आपको. अभी चेक करो, ये कौन सा एप्लीकेशन खुला हुआ है? Google.
क्रोम है, गूगल गूगल क्रोम है ये, है ना? हाँ, इसमें मेरा आईडी नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पे है? Sir, top right corner. Right corner. Sir, top right Top right corner corner. पे है। Top right corner. ओके, अभी वो ऑफिशियल है कि पर्सनल है? Official. Personal. Official. पर्सनल है, Personal. Sir, personal. वो पर्सनल आईडी है, पर्सनल आईडी है। ये देखो, अब वो ऑफिशियल आईडी हो गया, अब ये ऑफिशियल आईडी में चेंज हो गया है। देखो कैसे पता चलेगा? सबसे पहला आईडी चेक करो कौन सा है। ठीक है, तो जब भी आपको हम फॉर्म भेजते हैं, जब भी हम आपको कोई डेटा भेजते हैं भरने के लिए, और आप उसको गूगल क्रोम में खोल रहे हो, तो चेक करना है सबसे पहले आपका पर्सनल आईडी वहां नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑफिशियल आईडी, और फिर आप लॉगिन करोगे, कोई परमिशन नहीं मांगेगा वो। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, गूगल शीट्स, जहां पे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, राइट? और इसमें भी वो सारी कोलैबोरेशंस हम कर सकते हैं जो अभी अभी हमने एमएस वर्ड में करी है। माई स्क्रीन इज पॉज्ड? नहीं, no, it is not paused right now. It is right now visible. I am running on multiple devices. I am running it on multiple devices right now. In my phone, it is perfectly okay. So please check your internet. Next one is Google Slides. Google Slides is PowerPoint. हम इसमें जैसे अभी अभी जो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं, this I have created in my Google Slides. Similar way, आपको जब कोई टास्क दिया जाता है टीचर की तरफ से, तो उसमें भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं. In that also you can use the Google Slides, Google Sheets, right? And share that particular sheet with your friends and teachers. बनाने के बाद share कर सकते हैं with your teacher also. ठीक है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को इसमें पढ़ाना, Jamboard, है ना पुरंजय? Jasendra, can you tell them how to share it with teachers and friends? Yeah, Jamboard, sir. No, any sheet or any slide. Yes, sir. Yes, sir. Now let us go to that Google Docs here. Now ये देखो Google Docs हमने अपना ओपन किया था यहाँ पे. Let's go to the personal official one. तो ये हमारा ऑफिशियल आईडी, यहाँ पे देखो ऑफिशियल खुला हुआ है इस वक्त. तो इसमें आप जाएंगे यहाँ पे शेयर, एंड अब आपने अपने टीचर को शेयर करना है ये, राइट? तो आप जैसे मेरे को शेयर करना चाहते हैं तो यू विल राइट माई नेम देयर @dpsasr.com, एंड इसको चूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज लिख के यू कैन सेंड मी दिस. नाउ व्हेन यू आर शेयरिंग दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, रिमेंबर दैट which permission you want to give. Viewer means you can only see the data. Commentator means you can comment on the data. You can view as well as you can comment, right? You can share your views there. Editor means you have full rights, means आप data change भी कर सकते हो, modify भी कर सकते हो, delete भी कर सकते हो. अब advantage देखो, इसका क्या फायदा है, ऐसे डॉक्यूमेंट को बना के शेयर करने का एडवांटेज क्या रहता है, मैं वो दिखाता हूं आपको. यहां पे ये देखो, व्यूअर्स, हिस्ट्री, ये देखो हिस्ट्री. मैंने 11:58 पे सीनियर स्कूल को ये एडिट करने के लिए भेजा था, एंड एट 12 o'clock आफ्टर 2 minutes मैंने उनको हटा दिया वहां से. So I can see the whole history there. मैं पूरा हिस्ट्री देख सकता हूं यहाँ पे. कोई कमेंट किसी ने दिया है, वो किस ने देखा, कब देखा. I can see each and everything here about this document. अब मैं आपको ले चलता हूं एक जगह पे. Let me open यहाँ पे I mean this is a very good example for collaboration. जैसे कोई क्लास में कोई असाइनमेंट दिया सर ने आपको,
और आपको ग्रुप बना दिया है कि 5 बच्चे इस असाइनमेंट के ऊपर काम करेंगे या 10 बच्चे करेंगे, तो एक बच्चे ने एक स्लाइड बनाई या शीट बनाई और 5 बच्चों के साथ बाकी के जो उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर कर दी. Everybody can contribute into that same slide at one go. I mean, अगर आप ये फीचर को और एनहांस करेंगे ना तो बच्चों का और Yes, sir, I'm just trying to do that here because मैं ना उसके लिए एक बच्चे का, मैं अपनी डॉटर का जो ऑफिशियल आईडी है वो स्विच ऑन करने लगा. वो ज्यादा Right. क्लियर होगा सर, वो ज्यादा क्लियरिटी होगी उस चीज में फिर हमारे को. जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स में करते हैं ना कि बांट देते हैं काम को बिल्कुल बिल्कुल 4-5 बच्चों के बीच में, वैसे बच्चों को बताओ कि कैसे ये एक काम को 5 बच्चों में बांट करके एक ही शीट में अपडेट होता जाएगा. ऑफिशियल आईडी 18146. Tell me your password. Okay. Yes, students, check this out. This is the official ID now. I have logged in with the official ID now, right? So I'm switching on the classroom now, this particular ID. So मैं इसका classroom on करता हूं, मैं वहां से आपको एक practical करके दिखाता हूं इस चीज का. As you can see, this is the official ID of a student, right? और यहाँ पे let's suppose हमने कंप्यूटर की क्लास को ओपन करा है और यहाँ पे देखो एक मैम ने एक असाइनमेंट पुट करी है. कैन यू सी दैट असाइनमेंट इज देयर, क्रिएट अ चार्ट. अब ये चार्ट क्रिएट करना है हमने, कैसे करेंगे देखो. तो यहाँ पे हम जब आते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ऐड और क्रिएट. देयर इज ऑप्शन कॉल्ड ऐड और क्रिएट. तो विल क्लिक ऑन ऐड एंड क्रिएट. नाउ सी हियर, कैन यू सी द शीट्स हियर. तो अब यहाँ पे आप शीट्स, सीधा शीट्स पे जाके क्लिक कर दो. आपने ये पहले क्रिएट किया फिर उसको अपलोड किया, वो मत करो. आप यहीं से देखो सीधा शीट्स को क्रिएट करो और इसको हम अलाउ कर देते हैं. अब ये देखो ये शीट बन गई हमारी एक. अब ये शीट जो है जसनूर अपनी क्लास के 3 बच्चों के साथ शेयर करना चाहती है और ये 3 बच्चे इकट्ठा एक चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं. सो व्हाट दे विल डू, they will click on share button. So Jasnoor can click on the share button and यहाँ पे जाके वो अब ये रेहान गंभीर जो है ना, शी इज द सेम, मतलब सेम बैचमेट्स हैं, तो उसके साथ उसने अपने इस चार्ट को शेयर कर दिया, एडिटर की परमिशन दे दी. सो रेहान, इफ यू आर देयर राइट नाउ, if you are in the session right now, can you go to your email and check this email? Yes, sir. Yeah, Rehan, just open that and just type your name here. So see, as a student, you all can collaborate with each other and you can create one chart, right? Multiple students can work on the same chart. और उससे फायदा क्या होता है,
एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। आपके देखो, जब आप स्कूल भी जाते थे तो आपके ग्रुप्स होते हैं, क्लास में होता है ना, ग्रुप्स बनाए होते हैं हमने, ये मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, ये मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, और बाकी क्लास के मेंबर्स के साथ हम बात ही नहीं करते। तो आप यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं, आप ग्रुप में सारे एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे, एक ही फाइल पे काम कर सकते हैं। सो रेहान जैसे ही देखो इस फाइल को ओपन करेगी ना, यहाँ पे रेहान नजर आ जाएगी हमें ऊपर कि उसने इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया, एंड वो यहाँ पे अपना नाम नीचे देखो रेहान आ गई, देखो जल्दी से देखो, कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गई है। राइट नाउ रेहान राइट डाउन हियर। तो रेहान हम काम करते हैं दोनों जाने एक साथ, ठीक है? तो देखना रेहान, अभी रुको जरा। रेहान अब आप सीरियल नंबर लिखो, मैं नाम लिखता हूं। ओके रेहान, अब मार्क्स लिख दो। रेहान अब मार्क्स भी लिख दो इन तीनों के। तो देखो जल्दी जल्दी काम हो रहा है ना, मल्टीपल लोग एक साथ एक ही फाइल पे लग गए, जल्दी जल्दी काम हो गया। अब चार्ट बनाना है हमने। अब रेहान को पता नहीं लग रहा चार्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसने वो लेक्चर मिस कर दिया, ठीक है? तो रेहान डोंट माइंड, राइट? तो आपने लेक्चर मिस कर दिया, आपको नहीं पता चार्ट कैसे बनाते हैं। अब जसनूर ने वो लेक्चर लगाया था, अब जो जसनूर क्या करेगी, अब रेहान को समझाएगी यहाँ पे साथ में कि कैसे हमने ये चार्ट क्रिएट करना है। तो विल गो टू इंसर्ट, विल गो टू चार्ट, और फिर हम ये डेटा को चूज कर लेंगे यहाँ से। अब देखो ये हमारा पाई चार्ट बन गया। अब मैं पाई चार्ट की जगह ये बना लेता हूँ, चलो ये देखो राम श्याम जॉन के ये चार्ट बन गया नीचे। आपने चार्ट चेंज करना है, ये लो ये वाला चार्ट बना लो। हो गया, कुछ नहीं करना। अब हमने इसको बंद कर दो और टर्न इन पे क्लिक कर दो। जैसे ही टर्न इन पे क्लिक किया, ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली किसके पास चला गया? टीचर के पास। लेकिन सेंड करने से पहले चेक करो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? Untitled. तो विल ओपन आवर डॉक्यूमेंट, विल ओपन आवर डॉक्यूमेंट अगेन, और यहाँ पे हम उसको ठीक कर देंगे। ओके, इसमें अनटाइटल नहीं है, इसमें देखिए ऊपर वाले में अनटाइटल्ड है कि नहीं। ये देखो जो जसनूर ने पहले बना के भेजा था ना, वो अनटाइटल्ड है। जो मैंने अभी बनाया उसमें लिखा हुआ था चार्ट, क्योंकि वो अपने आप आ गया, ठीक है? तो ये हमने चार्ट क्रिएट कर दिया, सेव हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं दोनों को, और टर्न इन पे क्लिक कर देते हैं। सो ये हमारा डेटा सबमिट हो गया, ठीक है जी? सो we have done collaboration, we have seen how to upload our data in our Google Classroom also, ठीक है? So let's go to the next one now, Jamboard. कितने ने यूज करा है? Raise your hand the people who have used Jamboard. Okay, great, बहुत सारे लोगों ने यूज किया यार, ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है फिर तो। So everybody knows how to use Jamboard है, तो हम टीचर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है ये Jamboard को यूज करना। एज ए स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो यूज द Jamboard। ये देखो मैंने ये क्लिक किया एंड आई क्लिक्ड ऑन Jamboard। तो देखो जसनूर के साथ में अब तक जितने Jamboards उसके टीचर ने शेयर करे हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है? जो टीचर ने बनाए थे अपनी अपनी क्लासरूम में Jamboards, वो भी नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पे, ये देखो। अब जसनूर ने कितने बनाए हैं, ये वो हैं सारे, और किसी और ने बनाए हैं तो वो भी बीच में आ गए, राइट? तो नया बना के देखते हैं। सिमिलर वे, रेहान प्लीज ओपन योर ईमेल अगेन। रेहान दोबारा से अपना ईमेल ओपन कर लो। मैंने रेहान के साथ में फिर से Jamboard को शेयर किया है ना। रेहान और मैं क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू क्रिएट हट। तो रेहान कलर भरेगी और मैं हट को क्रिएट करूंगा। सो रेहान कलर कर दो जरा जल्दी से इसमें।
ओके रेहान, कलर कर दो इसमें। कलर भर जाएगा कि नहीं भरेगा? Sir, it's not opening. ओके, यहां से क्लिक करते हैं पेन से। वी कैन डू लाइक दिस, वी कैन फिल द कलर्स, राइट। अब रेहान को भी ये डॉक्यूमेंट वहां पे नजर आ जाएगा। मे बी सम टेक्निकल इशू जिसकी वजह से वो इस पे कोलैबोरेशन अभी नहीं कर पा रही है। सो दिस इज हाउ वी कैन ओपन आवर जैमबोर्ड, राइट। ये पर्सनल आईडी पे भी है, ऑफिशियल आईडीज के अंदर भी है, ठीक है। यू कैन यूज दिस, राइट। ये लेजर है, इससे कभी भी पढ़ाते वक्त अगर आपने टिक लगाना है तो ये उसके लिए यूज होता है, लेजर। यू कैन ऑल्सो राइट, यू कैन ऑल्सो स्टिकी नोट्स, आप यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स बना के भी लगा सकते हो। अच्छा, नोट्स से मेरी बात याद आई मेरे को, आप में से कितने लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कीप देमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड? ओके, बहुत सारे भी हैं। अच्छा बताओ, आप सब में से कितने, अब सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो, जल्दी से हाथ नीचे करो सारे। और ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो गूगल कीप ऐसी ऐप जो है वो आपके फोन में है? Sir, I have all the Google apps. यस, तो गूगल कीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। गूगल कीप बहुत ही अच्छी ऐप है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन क्रिएट नोट्स, यू कैन रिमाइंडर्स आप सेट कर सकते हो, यू कैन डू एडिटिंग, यू कैन ऑल्सो डू द आर्चिव ऑफ द ओल्ड नोट्स, राइट। आप इसमें वॉइस नोट्स भी बना सकते हो, आप इसमें फोटोग्राफ्स भी क्लिक करके रख सकते हैं, एंड सम मोर आर देयर। आई विल जस्ट शेयर विद यू, मैं आपके साथ एक शेयर करता हूं, देखो। अब देखो, मैंने अपना टाइम टेबल रखा हुआ है यहाँ पे, सी दिस इज माय टाइम टेबल। सो मैंने अपना टाइम टेबल जो है ना गूगल कीप के अंदर रखा हुआ है। तो जल्दी से मेरे को अगर टाइम टेबल देखना होता है, मैं गूगल कीप ऑन करता हूं, उसमें जाके क्लिक करता हूं, मेरे पास टाइम टेबल मेरे को दिख जाता है साथ में, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ ऑर्गेनाइज। आप यहाँ पे नया नोट बना सकते हो, ठीक है। नया नोट आप यहाँ पे टाइप कर दो, उसको पिन कर दो, राइट। कलर चेंज कर लो उसका, आप उसमें पिक्चर ऐड कर लो, यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर दिस। यू कैन ऑल्सो डू कोलैबोरेशन हियर, वर्ड कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखो यहाँ पे भी हम ये नोट्स को भेज सकते हैं अपने साथ सबको, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऑर्गेनाइज करते वक्त भी अपने फ्रेंड्स को अपने साथ में रख सकते हैं। आपने कोई मीटिंग शेड्यूल करी है तो आप उनके साथ में मीटिंग में उनको मैसेज भेज सकते हो सीधा ही कि ये इस टाइम पे मीटिंग होगी हमारी, ठीक है। सो गूगल कीप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलेंडर भी है, गूगल कीप के साथ साथ कैलेंडर भी बहुत जरूरी है। अगर आप अभी कैलेंडर खोलोगे ना, आप में सबके पास है ना, अभी फोन है सबके पास, गूगल कैलेंडर खोलो। गूगल कैलेंडर में जो जो इवेंट अभी चल रहा है हमारा, ये वहां नजर आ रहा होगा आपको, राइट। तो गूगल कैलेंडर में वो सारी चीजें, हॉलीडेज हो गई, असाइनमेंट्स हो गई आपकी। तो देखो सैंपल आपके सामने है, ऑल द असाइनमेंट्स विच आर देयर वो आपको विजिबल होंगी। ये देखो, मैं दिखा भी देता हूं आपको। नाउ सी दिस, तो इसमें आपके सारे इवेंट्स भी नजर आते हैं। ये देखो, ये इवेंट जो चल रहा है वो है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी इवेंट्स हैं जो कि आ जाएंगे, बट इट टेक्स सम टाइम बिकॉज वो इंटरनेट की वजह से सारे नहीं नजर आते हमें। तो वो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी, ये देखो आ रही हैं। कैन यू सी दैट इट इज कमिंग ऑटोमेटिकली। चैप्टर 7 का असाइनमेंट है, लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, असाइनमेंट किसी टीचर ने डाला हुआ है, राइट। तो उसके इसी तरह से बाकी भी आपको असाइनमेंट सारी की सारी यहाँ पे नजर आ जाएंगी गूगल कैलेंडर। नाउ हाउ टू डू दैट, गूगल कैलेंडर का इवेंट शेड्यूलिंग कैसे करते हैं? सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, एंड जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे
So बहुत सारी options आपके पास आ जाती हैं. So little bit slower on the internet. Yes. तो यहाँ पे आप ये देखो, you can create event, you can create out of office, task and appointments. You can add guest, timings, and you can also add this Google Meeting. तो ये सारा कुछ ऐड करने के बाद you can click on save. Contacts, ये तो सबको यूज करने आते हैं, किसी को ना करने आते हो ये फोन में होते हैं ना, फोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हम एक फोन से दूसरे फोन में शिफ्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट सारे अपने आप आ जाते हैं. रीजन बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जो अपने कॉन्टैक्ट्स है वो जीमेल में सेव करते हैं. सो वी सेव आवर कॉन्टैक्ट्स इन जीमेल. अब ये कहाँ से दिखते हैं हमें, अगेन वी विल गो टू दैट 9 डॉट्स कॉन्टैक्ट्स एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो नजर आ जाएंगे ऐसी. सो ऑल द कॉन्टैक्ट्स आर हियर. सो इसमें कॉन्टैक्ट्स ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट. वी विल डिस्कस ऑल दीज कॉन्टैक्ट्स एंड जो पिछली चीजें हैं, कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स है, कीप है. विल हैव अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन दैट मे बी इन द नेक्स्ट वीक. So now let's take up your questions. कुछ questions है आपके, let me go through that and we can discuss those questions here. या अधिराज, जो आपने ऑप्शंस पूछी हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे कि ब्रेकआउट होते हैं, पोल्स होते हैं, क्यूए एंड सेक्शन होता है, व्हाइट बोर्ड है. दैट वी कैन यूज एज अ टीचर, दे कैन यूज इट, राइट. अगर मैंने कोई क्वेश्चंस आपसे पुट करने हैं, आई कैन क्रिएट अ क्वेश्चन आंसर्स. आई वांट टू ब्रेक अप दिस ऑडियंस इनटू मल्टीपल रूम्स, सो आई कैन यूज ब्रेकआउट रूम्स, राइट. बट ये आपके क्लासरूम में नहीं आएंगे. दिस विल नॉट कम इन योर क्लासरूम, इट विल कम ओनली इन द टीचर्स ID and only in specific IDs of our school, right? सर और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है नवदीप सर? email is sent to you, please check. सर कई बार मेल में नंबर आ जाते हैं. Just hold on बेटा, just hold on. आपने ईमेल सेंड किया है सर? Yes sir. One document is shared with you sir. Yes, there is one question from Gursimrat Johal कि जब हम फोन से अपना मीट को ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकते. We cannot do background blur. यहाँ पे हो सकती है. If you can see this, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. So I can change my background. Right now it is very hot and humid outside. So I want to sit on a beach. So now I am sitting on the beach. But there is some issues here. अगर आप बैकग्राउंड को ब्लर करके अपनी क्लासरूम लगा रहे हैं तो आपका जो इंटरनेट है वो ज्यादा यूज होगा, राइट. और उसमें क्या होगा, चोकिंग होगी. तो आपका जो प्रॉब्लम है वो आएगा इसके अंदर, ठीक है. तो ये बैकग्राउंड जो आप चेंज करते हैं, ब्लर करते हैं, आई विल नॉट रिकमेंड, राइट. मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप बैकग्राउंड जो है वो ब्लर करके और फिर उसके बाद क्लास में बैठें. यू शुड नॉट डू दैट, राइट. ब्लरिंग मत करें, उससे इंटरनेट का प्रॉब्लम आएगा. नो, वी कैन नॉट चेंज इट. फोन पे चेंज नहीं किया जा सकता बैकग्राउंड को बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन. बच्चे मेरे वाले में तो नहीं आया अभी तक ऑप्शन बैकग्राउंड का, क्योंकि मेरा फोन अपडेटेड है. माई फोन इज अपडेटेड विद गूगल मीट एंड विद एवरी सॉफ्टवेयर. इट इज नॉट देयर. हाँ, आईफोन में आई विल चेक इट आउट एंड लेट यू नो अबाउट दैट, राइट. बट ऑन द एंड्रॉयड फोन इट इज नॉट देयर.
Excuse me, sir. This happens because for this feature to happen, the browser needs to have WebGL 2.2, and because in the phone there is an app, it is not installed on the app. It is only on the browsers. See, here we are not discussing some too much of technical jargons. Simple. Change हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. Simple है. एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, एक्स्ट्रा एप्स इंस्टॉल करेंगे, उससे क्या होगा? उससे आपका अकाउंट हैक होने का चांसेस हैं. जब आप एक एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करते हो अपने फोन में, तो सबसे पहली चीज वो क्या मांगता है आपसे? आपकी परमिशन मांगता है कि आपका फोन एक्सेस करना है उसने, आपकी पिक्चर्स एक्सेस करनी है उसने. सो व्हाई यू आर गिविंग योर परमिशन टू ऑल द एप्स? तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि फोन में हम बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट देयर, राइट? बट यस, कुछ फोन्स में हो सकता है होती हो, बट 90% इट इज नॉट देयर. Now, if you see that Nadeep sir has shared a document with me, जिसमें कि उन्होंने कुछ why Jamboard option is not there in the phone. Yes, it is there. You have to install the Jamboard app there in your phone, right? Yes, पर्सनल आईडी से आप पर्सनल आईडी से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर यूजिंग ऑफिशियल आईडी आप नहीं कर सकते. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को. एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे को, जो लगा, मेरे को लगता है कि इसका आंसर जरूर देना चाहिए. हाउ ऑफन वी शुड चेंज आवर पासवर्ड? अराउंड 3 months. हर 3 महीने बाद पासवर्ड चेंज कर लो. रीजन उसका यही है कि आपका पासवर्ड जो है वो किसी और को पता लग सकता है, वो गेस भी कर सकते हैं. तो बेस्ट है कि आप अपना पासवर्ड हर 3 महीने के बाद में चेंज कर दो. ओके, यस बच्चे. Sir, in my phone, there do not come 9 dots option. स्क्रीन मिररिंग. तो स्क्रीन मिररिंग की जो प्रॉब्लम है ना, वो कैसे दूर होती है? देखो, जब हम स्क्रीन को शेयर करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, वो परमिशंस के बारे में वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, कि आपको ऑफिशियल आईडी ही रखना है, दूसरी चीजें नहीं रखनी है. तो अगर आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं और उसमें मिररिंग आ रही है, मतलब बहुत सारी स्क्रीन ऐसे अंदर को जाती जा रही हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे ही आपके पास स्क्रीन शेयरिंग आए, उसके बाद एक तो उसको पिन मत करो, उसको पिन करके हटा दो. ये देखो, now if you see this my screen, I am able to see everybody here. I am also able to see my, देखो मेरे को अपनी स्क्रीन भी दिख रही है. तो यहाँ पे जब हम इसको स्क्रीन शेयरिंग को ऑन करते हैं तो वो साथ में हमें मैसेज आता है, उस मैसेज को इग्नोर कर देना है आपने. ठीक है? सो ये इस तरह से हम कर सकते हैं. Now any other specific question if you have? Excuse me, sir. Yes. Sir, in my phone, there do not come 9 dots. फोन में 9 डॉट्स नहीं आ रहे? Yes, sir. ओके, लेट मी चेक कि फोन में 9 डॉट्स आते हैं कि नहीं. सर इट इज इन क्रोम. Sir, no, मोबाइल में 9 dots नहीं आते हैं. उसमें फोन में नहीं आते, वो फोन में आएंगे 3 डॉट, फोन में 3 डॉट्स आते हैं. सर Can do desktop size. होरिजॉन्टल अगर करते आप नहीं आते, अगर आप डेस्कटॉप साइट्स ओपन करेंगे तो ही आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. So you are not audible. Yes, sir.
So you are not audible. Yeah, I lost my internet connection. That's why I'm not there on the meeting. So I joined back now. So any other question if you have? Otherwise, we can leave now. No, sir. Excuse me, sir. No, sir. तो मैंने आपसे आखिरी चीज एक और बोली थी कि आपका जो मैंने आज आपको एक ईमेल भेजा था, उस ईमेल के अंदर आपको एक मैसेज आया होगा बहुत लंबा चौड़ा, और उसमें एक लास्ट में मैसेज था, आर यू गोइंग देयर, यस, नो और मे बी. सो अगर अगली बारी से ऐसा कोई इवेंट आता है आपको और उसमें अगर आप यस पे क्लिक करते हो, आफ्टर दैट अगर आप उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे तो नो परमिशन इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन फॉर दैट मीटिंग. ओके, अदरवाइज वो परमिशन मांगता ही रहेगा. Sir, I didn't got that email. बच्चे ईमेल, अपना ईमेल आईडी चेक करो, रिफ्रेश करो उसको. आज का ईमेल, आज के डेट का ईमेल आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना आया हो. Excuse me, sir. यस. Sir, actually, when I joined from the panel of any classroom, it says that you cannot join with this account. It says that you can change the account or try again. यस, बिकॉज आपके फोन में आई थिंक मल्टीपल आईडीज होंगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है आपको. Okay, sir. Okay, that's all for today, students. Thank you. Sir, I did not got that email. I have refreshed Okay. my phone. आज की डेट की लास्ट ईमेल आपने चेक कर ली है कि नहीं है? Got it. यस, इट इज Sir, देयर. I have not got. बच्चे आई होगी, आप चेक करो एक बार अपना दोबारा से. यस, बहुत सारे लोगों को आया हुआ है ईमेल. आपको चेक करना पड़ेगा. आपको अपना इंटरनेट एक बार बंद करके दोबारा फोन पे दोबारा चला के देखो, राइट, रिफ्रेश करो मेल्स को, आ जाएगा. Sir, I have refreshed my. कोई बात नहीं, अभी आप चेक करना बच्चे, आराम से बैठ के चेक करना. नहीं होगा देन ऑल्सो गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट. So Excuse me, that's all sir. for today, students. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Who sent the email? I have sent you the email. Sir, what is the email? जतिंदर Excuse me, sir. dpsasa.com से आया होगा. No, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye bye. Take care. Thank you, sir. Excuse me, sir. Hello. Sir, have a nice day. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.